Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। Cryptocurrencies traded lower on Friday with the global crypto market decreasing 0.85% over the last day. Bitcoin was trading around $16,000. US stock futures edged higher pre-market on Black Friday, with trading likely to be subdued following Thanksgiving. Stocks have been lifted in recent days by expectations that the Federal Reserve will slow the pace of interest rate increases. BTC was trading at $16,484, down 0.27% in last 24 hours. ETH was trading at $1,185 in the similar time span. All other major altcoins traded mostly mixed. Tree versus IC15 index traded flat at 24,725 points. ओके, सो मूविंग ऑन। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनांस ने अपने इंडस्ट्री रिकवरी फंड के लिए और $1 बिलियन आवंटित किया है, जिसे फंड का आकार प्रभावी रूप से $2 बिलियन से अधिक हो गया है। अतिरिक्त आवंटन की घोषणा शुक्रवार को बाइनांस के सीईओ चैंगपेंग ज़ाओ ने की है। सीजी ने कहा कि बाइनांस ने अपने क्रिप्टो रिकवरी फंड के लिए $1 बिलियन का लक्ष्य रखा है। इसके एक दिन बाद आकार में बढ़त हुई है। एटॉस लैब्स, जंप क्रिप्टो, अन्य प्रमुख क्रिप्टो कंपनियों के साथ बाइनांस की पहल में शामिल हुए और फंड में $50 मिलियन का योगदान देंगे। Moving on to the next update, Tron DAO and its operator Justin Sun have applied to contribute to Binance's $2 billion crypto recovery fund. Binance has announced a $2 billion crypto recovery fund in the wake of FTX collapse. The Crypto Recovery Fund aims to help innovative projects that are facing liquidity issues because of the collapse of FTX. Binance hopes to mitigate some of the impact caused by FTX to the crypto industry. मूविंग ऑन, मैटर लैब्स बर्लिन जर्मन स्थित ZK Sync के डेवलपर एक समाधान जो इथेरियम लेनदेन की लागत को कम करता है, उसने सीरीज सी फंडिंग में $200 मिलियन जुटाए हैं। राउंड का नेतृत्व ब्लॉकचेन कैपिटल और ड्रैगनफ्लाई कैपिटल ने किया, जिसमें लाइट स्पीड, वेरिएंट और A16Z यानी एंडरसन हॉरोविट्ज की भागीदारी थी। वही कंपनी ZK Sync के अपने विकास प्रयासों को जारी रखने के लिए धन का उपयोग करने का इरादा रखती है। Moving on to the next update, crypto lending firm Matrixport, led by Jihan Wu, is looking to raise $100 million at a $1.5 billion valuation. The Singapore-based firm already has commitments for $50 million from lead investors at the sky-high valuation, but is still looking for investors for the other half of the round. Matrixport closed a $100 million Series C round in August 2021 that valued it at $1 billion, led by DST Global, C Ventures and K3 Ventures. मूविंग ऑन, बेल्जियम के फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी ने अपनी स्थिति की पुष्टि की है कि बिटकॉइन, ईथर और अन्य क्रिप्टो करेंसी जो केवल कंप्यूटर कोड द्वारा जारी की जाती है, वो सिक्योरिटीज का गठन नहीं करती है। एक्सप्लेनेशन बेल्जियम की फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मार्केट्स अथॉरिटी FSMA से 22 नवंबर की रिपोर्ट में आया था, जिसका एक मसौदा जुलाई 2022 में टिप्पणी के लिए ओपन किया गया था। FSMA के अनुसार बेल्जियम के मौजूदा वित्तीय कानून और नियम डिजिटल परिसंपत्तियों पर कैसे लागू होते हैं, इस पर जवाब की मांग में वृद्धि के बाद स्पष्टीकरण आया है। Well, that's all in today's bulletin. This is me, Vishakha Thakur, signing off. मैं संदीप कसालकर। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है वीकली रैप। Hello and a very warm welcome to this special edition of Weekly Wrap. I am Ruchi Sharma. And I'm Manoj Dara. And Ruchi, let's get started with the top headlines that made news this week and the reasons why the markets are trading higher. Bitcoin and the broader cryptocurrency market has rebounded after it hit a 2-year low in the past 48 hours in the wake of FTX collapse and fear of its widespread contagion. So in today's special segment, we are going to explore the top 10 reasons as to why Bitcoin has turned green and the cryptocurrency markets are trading higher. So as we speak, Bitcoin has actually turned green on Tuesday, that is 22nd November, coinciding with the news that noted investor Cathie Wood's ARK Investment Management bought $1.5 million in Grayscale Bitcoin Trust. So एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट दौर से एक मार्केट गुजरा है जी। FTX के कोलैप्स के बाद में हमने देखा कि एक बहुत ज़्यादा सेलिंग भी आई थी मार्केट के बाद,
एंड ये जो कैथी वुड्स है यहाँ पर उनको एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है वो, बिल्कुल, और उनका जो उनका यहाँ पर कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये ट्रस्ट के शेयर्स लेने में नहीं है, उन्होंने कॉइनबेस के शेयर्स भी लिए हुए हैं कि जो एक सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। सो एज वी स्पीक यहाँ पर FTX का कोलैप्स हुआ और यहाँ पर कॉइनबेस में उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ाई। यहाँ पर बिटकॉइन में ट्रस्ट दिखाया। बिटकॉइन यहाँ पर 15,700-600 के करीब यहाँ पे फिसला था। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लेकर एक बहुत बड़ा एक आंकड़ा आया था यहाँ पर। पहले 17,500 था, बिटकॉइन ने वहाँ पर एक बेस बनाया था। अभी के जो रिसेंट नंबर्स हैं वो एक सजेस्ट कर रहे हैं कि 15,500 की तरफ एक प्रोडक्शन कॉस्ट है। सो वहाँ पर एक बेस बना हुआ है। तो एक बाइंग ऑप्टिमिज्म, एक वैल्यू बाइंग हम जिसे कहते हैं कि इतना गिरने के बाद में 20,000 से गिरने के बाद में बिटकॉइन एक लेवल पर आके संभला। एंड दीज आर द रीजंस व्हाई मार्केट गॉट सपोर्ट एंड इट्स ट्रेडिंग हायर। Moving on, one of the reasons for Bitcoin hitting two-year low of $15,480 on Monday was the looming fear about trading firm Genesis Future, as rumors spread that it might file for bankruptcy. But later on Monday, Genesis said it had no plans to file bankruptcy imminently. तो यहाँ मनोज, जैसे FTX एक्सचेंज में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो जेनेसिस का भी था, $175 मिलियन के करीब का एक्सपोजर था। उन्होंने डिक्लेयर भी किया है, वो किया था। और अभी उसके बाद लोगों को लगा कि शायद जेनेसिस भी बैंक्रप्सी फाइल करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब अगर जैसा हम देख रहे हैं मार्केट में थोड़ा ऑप्टिमिज्म दिख रहा है, थोड़ा पॉजिटिविटी दिख रही है, तो अगर FTX रिकवर करता है तो जेनेसिस भी रिकवर करेगी, ऐसी उम्मीद है। ये बहुत ही अच्छा रीजन है। यहाँ पर एक हमने यहाँ पर मार्केट में वो भी कवर किया टेरा लूना का कोलैप्स, और उसके बाद में जो कैस्केडिंग इम्पैक्ट है वहाँ पर सेल्सियस, 3 Arrow कैपिटल, हमने बहुत चीजें हमने कवर की है और यहाँ पर देखा है कि मार्केट वहाँ से संभला नहीं। लेकिन यहाँ पर जो एक मोड़ यहाँ पे आया है, यहाँ पे ब्रॉडर बैंकरप्सी से की तरफ जा रहे हैं, बट दे आर टेकिंग स्टेप्स, संभल भी रहे हैं यहाँ पर। तो दैट इज द रीजन व्हाई इन्वेस्टर्स आर ऑप्टिमिस्टिक कि यहाँ पर जेनेसिस इज अ ब्रोकर, और वहां पर ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स उनके भी हैं जो कि FTX में ट्रेड भी कर रहे हैं, उनका इन्वेस्टमेंट भी है वहां पर। और इसको लेकर अगर यहाँ पर अगर एक ऑप्टिमिज्म आ रहा है FTX की स्टेबिलिटी को लेकर, एंड दैट इज द रीजन व्हाई जेनेसिस भी संभलेगा और इसके इन्वेस्टर्स भी संभलेंगे, एंड ये एक रीजन है जहां पर एक ऑप्टिमिज्म बना हुआ। बिल्कुल। Moving on, investors' fear towards FTX contagion eased following the news of FTX holdings $1.24 billion in cash reserves, which former FTX CEO Sam Bankman-Fried raised hopes of for investors, which is actually the saving reason for the FTX, and which triggered value buying in the beaten down digital currencies such as Bitcoin and Ethereum. So, जैसे हमने हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे व्यूअर्स को बताया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑप्टिमिज्म है। सैम बैnkman-फ्रीड का एक बैंक्रप्सी तो उन्होंने फाइल की हुई है, और वहाँ पे लेकर जब भी आप बैंक्रप्सी फाइल करते हो तो यहाँ पर सबसे पहले आता है कि यहाँ पे आपके एसेट्स कितने हैं, आपकी लाइबिलिटीज कितनी है। लाइबिलिटीज तो उन्होंने डिक्लेयर की हुई है कि लगभग $3 बिलियन के करीब है। कुछ 20 से 50 इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने वहाँ पे उनको देना है। अब यहाँ पर कैश रिजर्व का सिर्फ आंकड़ा आया हुआ है, उनके पास बहुत सारे एसेट्स भी हैं, अभी उसका इवैल्यूएशन हुआ नहीं है। सो दिस इज द रीजन why market participants felt that there is a hope of recovery in the market, because such a cash reserve means asset liability पे सबसे पहले तो आपकी 50% इन्वेस्टर्स का जो पैसा है तो वो तो आप वो दे सकते हैं, आपके पास में इतना कैश है। ये ऐसा इवैल्यूएशन होता है। उन्होंने एक बहुत बड़ा एक स्टेप भी लिया हुआ है। उनके जो इनकमिंग CEO हैं वो एनरॉन के भी जो रिस्ट्रक्चरिंग उन्होंने वो भी की है, तो एक बहुत बड़ा वो भी ऑप्टिमिज्म है। स्टेटमेंट्स आ रही है हर जगह से, लेकिन दे आर टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम, एंड कैश रिजर्व डिक्लेरेशन का जो एक स्टेटमेंट आया है दैट इज एक्चुअली पॉजिटिव फॉर द मार्केट। तो भी एसेट इनके कितने होंगे और लायबिलिटी से अगर ज्यादा होंगे तो फॉर एग्जांपल एसेट इवैल्यूएशन अगर उनका आता है एज ऑफ द करंट मार्केट प्राइस, वो इवैल्यूएट होगा, एंड वहां पर कौन कितने इन्वेस्टर्स हैं उनको अगर ये भी आंकड़ा आता है कि लगभग अगर इक्वल अमाउंट ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज है, देन you will see a broader optimism. Yeah, absolutely. Moving on, another reason that pump primed the crypto market was the Brad Garlinghouse of Ripple and Justin Sun of Tron were interested in buying assets from FTX. तो यहाँ पर जब FTX ने कोलैप्स हुआ या कहो कि बैंक्रप्सी डिक्लेयर की, तो उसके बाद ये रिपल
से जो ब्रैड है और जस्टिन सन फ्रॉम ट्रॉन, दोनों ने इंटरेस्ट दिखाया है इन बाइंग आउट FTX। सो ये इंटरेस्ट उनका तभी भी आया था जहां पर जब Binance ने, हमने बहुत एक्सटेंसिवली ये जब Binance ने पुल आउट किया था, और उसके बाद में खबरें ये भी थी कि यहाँ पर सैम बैंकमैन-फ्रिड जो है वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ में टच में है, एंड एक नाम ट्रॉन के फाउंडर का भी आया था, और यहाँ पर $1 बिलियन वो अलग अलग इन्वेस्टर्स से रेस कर रहे हैं। रुचि, प्लीज रिमेंबर दैट कि यहाँ पर अभी तक उसके ऊपर एक डिसाइसिव आया नहीं है कि जो बाकी के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने एग्री किया है कि नहीं। अगर वो भी एग्री करते हैं, दैट इज द रीजन दैट विल ऐड मोर वैल्यू टू दिस रैली। और यहाँ पर एक सेंस ऑफ, it's a sense of responsibility. You are raising money, you are saving your company, in turn you are protecting millions of investors जो आपके पास में invested है। Investor confidence बढ़ेगा कि अगर ऐसे bankruptcy से अगर कोई restructuring करके अगर बाहर निकल सकता है, that means he is a company to bet on going forward, और यहाँ पर optimism बना रहेगा। Moving on, despite the bearish market trend, a news report from bitstacker.com has showed that there has been double the amount of trademark applications for NFTs and the metaverse-related items in 2022 compared to the previous year. So, such news is a stark contrast on the fear of the ongoing crypto winter. So, बहुत ही interesting stats है. Market नीचे आ रहा है, cryptocurrency market से वॉल्यूम ड्रॉप हो रहे हैं। यहाँ पर सोलाना का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी देखा गया था हमने, और वहाँ पर इथेरियम की जो सो कॉल्ड इथेरियम किलर था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक शफल हुआ था। NFT में बहुत ज्यादा मार्केट शेयर कमांड करते हैं दोनों भी, इथेरियम भी और सोलाना भी। यू ट्रैक दिस सेक्टर एक्सटेंसिवली, व्हाट इज योर टेक अवे फ्रॉम दिस? सो मनोज, जैसे FTX कोलैप्स हुआ उसका भी बहुत हमने इफेक्ट देखा, मार्केट पे देखा, कहीं ना कहीं NFTs पर भी देखा। बहुत सारे NFTs FTX के पास भी थी जो जिस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई। लेकिन ये एक अच्छी बात है, एक अच्छे जो आंकड़े सामने आए हैं कि 2021 से कंपेयर अब डबल हो गया है आंकड़ा ऑफ पेटेंट जो फाइलिंग है, ट्रेडमार्क फाइलिंग है। So that means there is some value they are seeing in the NFT and the metaverse at the time when the market is down. So that means technology is the king. NFT and metaverse में optimism बना हुआ है because यहाँ पर बहुत सारे रीजंस भी हैं क्रिप्टो करेंसी को छोड़कर, एंड वी हैव टू सी दैट, टाइम विल टेल दैट कि NFT मेटावर्स कितना ज्यादा आगे मल्टीप्लाई। और बस ये मुझे ऐड करना था पॉइंट कि जो ट्रेडमार्क फाइलिंग है ना, वो भी हमने सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर में एंड स्पोर्ट्स सेक्टर में देखी है रिलेटेड टू NFTs एंड मेटावर्स। फैंटास्टिक, मूविंग ऑन। So Binance CEO Changpeng Zhao recently announced that Binance would start implementing proof of reserve soon. So proof of reserve or POR is a verifiable auditing procedure that helps enhance transparency to centralized cryptocurrency reserves. It helps customers understand about the platform's financial position and whether it had adequate funds to match customer deposits. Following Binance CEO Zhao's announcement, many other crypto exchanges have adopted the same policy to publish their proof of reserve, which has boosted investor confidence on crypto exchanges. तो ये एक बहुत बड़ा, एक अच्छा मैं कहूँगी कदम होगा कि आप proof of reserve लेकर आएं, क्योंकि आप बता पाएंगे आपकी जो कंपनी है उसकी नींव कितनी सॉलिड है, कितने रिजर्व आपके पास हैं। किसी भी इस तरह की सिचुएशन में जिसमें कि FTX था, तो आप एक्चुअली अपने कस्टमर फंड्स को मतलब सुरक्षित रख पाते हैं, नहीं पाते हैं। आई थिंक ये बाकी जो सारी एक्सचेंजेस हैं इन्होंने भी इस बात को सहमति दी है कि इट्स अ वेरी गुड मूव एंड दे वुड वांट टू फॉलो इट। $69 बिलियन का फंड्स का एक्चुअली एक वैल्यूएशन आया है Binance का, और यहाँ पर प्रूफ ऑफ रिजर्व को डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हो। हर एक्सचेंज ये करता है बिकॉज यहाँ पर रेगुलेशंस एज ऑफ नाउ इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। बाकी फाइनेंशियल मार्केट्स में ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मेथोडोलॉजीज है, एंड ओनली टाइम विल टेल कि यहाँ पर रेगुलेशंस का कितना रोल होने वाला है, और रेगुलेशंस आने से मार्केट कितना स्टेबल होगा। दैट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग आवर व्यूअर्स। सैम बैंकमैन-फ्रिड अगर प्रूफ ऑफ रिजर्व का एक मेथोडोलॉजी अगर पहले से अडॉप्ट करते थे तो ये सिचुएशन नहीं आती थी। अगर ये मेथड इतना फुल प्रूफ है, यहाँ पर इन्वेस्टर्स को एक बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, और थोड़ी ट्रांसपेरेंसी भी रहती है। Of course, absolutely. Yes. So another big announcement came from the CEO of largest exchange, which is actually CZ, has revealed that he is establishing a $1 billion recovery fund to help people in the industry, while saying the sector will be fine. We want the strong industry players today to protect the good industry players who might just be hurt because of the short-term turbulence which is actually created. And he said this in an interaction with the CNBC TV18. So एक बहुत बड़ा सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म है यहाँ पर। जैसे हमने कहा कि एक स्टेप उन्होंने आगे लिया है कि वो खुद के एक्सचेंज का वहाँ पर एक रिजर्व्स है वो मेंशन करेंगे, एंड यहाँ पर एक मार्केट में
इसके पहले भी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आई थी जब ही उन्होंने एक रिकवरी फंड का अनाउंसमेंट किया था। रिकवरी फंड एक ऐसा एक पूल है जहां पर कोई भी अगर ट्रबल से अगर जाता है, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एनी क्रिप्टो प्रोजेक्ट दैट इज गोइंग बैंकरप्ट, तो वहां पे उसको जो फंड है वो प्रोटेक्ट करेगा। ये यूजुअली सब फाइनेंशियल मार्केट में होता है। अभी इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हमारे व्यूअर्स के लिए हम बता दें कि अगर आपके बैंक अगर कोई डिफंक्ट होती है या फिर से फॉर एग्जांपल अगर कोई बैंक इज अनेबल टू पे देयर कस्टमर्स, तो यहाँ पर एज पर आरबीआई रूल्स एंड रेगुलेशंस 5 लाख रुपीस का जो आपका डिपॉजिटेड वर्थ ऑफ अमाउंट है वो आपको मिलेगा आरबीआई की तरफ से। अगर आपका 10 लाख है तो आपको 5 लाख तो मिलेगा ही। सो देयर इज सम प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर्स मनी एंड दिस इज समथिंग दैट विल हेल्प द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। Moving on, another positive voice that helped pump prime the market came from the Minnesota representative Tom Emmer, who said that FTX collapse is not a crypto failure, it's a failure of centralized finance and Sam Bankman-Fried. He insisted decentralization is the key to avoid such mishap. तो एक्चुअली में जितना ज्यादा आपका जो ये पूरा जो फंड्स हैं आपके जो क्रिप्टो डिजिटल एसेट्स हैं, अगर वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में होंगे तो वो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तो एक सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि ये जो कोलैप्स हुआ उसके बाद में डिसेंट्रलाइज जो प्लेटफॉर्म है यूनिस्वैप है, वहां पर एक बहुत बड़ा एक सर्च देखने मिला था। लगभग 50% से के करीब उसके जो टोकन है उन्होंने परफॉर्म किया था, एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई। सो एक और ऑप्टिमिज्म है, हमेशा ऐसा होता है मार्केट में, कोई भी अगर एस्टैब्लिश्ड प्लेयर अगर नीचे जाता है तो उसका मार्केट शेयर किसी और को जाता है। तो ये होता रहता है, अगर वो कभी पीछे है तो वो आगे है, अगर वो लॉस है तो किसी और का गेन भी है। बट यहाँ पर देखने जैसी बात ये भी है, और स्टैट्स भी ये बता रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसे मार्केट में से निकाल के अपने घर पे लेके नहीं जा रहे हैं, वो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बाइंग shifting from centralized to decentralized platforms, and which is actually a positive sign. मार्केट में अगर ऐसे टाइम पर अगर पैसे निकाल के आप जा रहे हो तो क्रिप्टो मार्केट संभलेगा नहीं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, एचएनआईज हैं। लॉन्ग टर्म इज द स्ट्रेटजी, एंड बिटकॉइन इतने लोअर से जो बाउंस बैक किया है, या दैट इज समथिंग व्हिच इज रियली इंटरेस्टिंग। Moving on, FTX collapse has triggered global regulatory mechanism to implement oversight over the crypto industry in order to protect investor funds. Regulatory oversight is always a positive sentiment for the markets. So, एक सबसे important जो aspect अभी is regulations. And as we speak, there are a lot of things that are going on in the global market as far as the regulation is concerned. So हमारे इन्वेस्टर्स के लिए मैं बता दूं कि हमने क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स के ऊपर, वेब3 मार्केट्स के ऊपर के उनके क्रिप्टो रेगुलेशंस एंड टैक्सेशंस के ऊपर एक बहुत ही अच्छा एक एपिसोड हमने शूट किया हुआ है। आप जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन पेज में हम मेंशन भी करेंगे ये। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वाचिंग दैट शो, प्लीज गो एंड वॉच इट। बट ये जो रेगुलेटरी एंगल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है एज ऑफ नाउ। अगर आप कंसर्न में है तो रेगुलेशंस आते हैं तो एक होप होगा। इन्वेस्टर्स, बिग इन्वेस्टर्स सच एज माइकल सेलर और ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग एंड कैथी वुड्स आर ऑलवेज in support, and they are always constantly asking about regulations. और यहाँ पे अगर regulations अगर आते हैं, that means market को बहुत बड़ा stability और push मिलेगा। तो 10 countries ने regulations को ले आए हैं, और आगे और countries जो है वो implement करेंगे, and they'll come up with their regulations. हमारे investors देख सकते हैं वो वीडियो। Moving on, Bitcoin briefly jumped about 1% after minutes from the Federal Reserve November meeting showed that the majority of central bankers prefer a slower pace of rate hikes going forward. तो अब तक 6 हाइक्स हो चुके हैं, फेड रेट हाइक्स, उसमें से 4 फेड रेट हाइक तो 75 बेसिस पॉइंट थे। अब जिस तरह से मार्केट थोड़ा सा उठ रही है, थोड़ा ऑप्टिमिज्म दिख रहा है, तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स और बैंकर्स भी यही चाह रहे हैं कि थोड़ा स्लोअर हाई ट्रेक हो। तो इस बार हो सकता है 50 बेसिस पॉइंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वी विल नॉट मेंशन एनी नंबर्स। सो नंबर्स तो हम मेंशन नहीं करेंगे। दिसंबर में एक पॉलिसी है, पॉलिसी मीटिंग है उनका, उसका आउटकम क्या होगा हमें पता नहीं है। बट कितना होगा, दैट इज समथिंग यू नो व्हिच इज रियली इंटरेस्टिंग। सीपीआई नंबर्स जो थे, जो जितने एक्सपेक्टेड थे उससे कम आए हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई मार्केट का एक ऑप्टिमिज्म है कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो 75 बेसिस पॉइंट से बढ़ रहे थे और ज्यादा बढ़ रहे, वो थोड़ा सा पेस जो है, हाँ, सो स्लोअर पेस, जो उनका जो बढ़ने का जो पेस है वो कम होगा। 25 होगा, 50 होगा, दैट ओनली टाइम विल टेल कि सिचुएशन यूएस में कैसी हो रही है, अगर इन्फ्लेशन के नंबर्स अगर बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, दैट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू कीप एन आई ऑन। बट एज ऑफ नाउ देयर इज ऑप्टिमिज्म दैट की जो पेस ऑफ जो हाइक है वो कम होने वाली। Well, that's all there is in today's special segment. We will meet again with an exciting market update. Till then, keep watching 3.0 TV. This is Manoj Dara signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Please like and share our video, subscribe to our channel, and press the bell icon to get instant updates. Have a great day. Thank you.